اللہ الرحمن الرحیم۔ زلیخا جب سے کھیتوں سے آئی تھی بدحواس سی تھی، رنگت سفید لٹھے کی مانند ہوئی پڑی تھی، بار بار اپنی پیشانی پر آنے والا پسینہ پونچھ رہی تھی۔ میں کئی بار اس سے پوچھ چکی تھی کہ تمہیں کیا ہوا ہے، لیکن کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ میں اور میری بیٹی اکیلے ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور بیٹا کوئی تھا ہی نہیں، اسی لیے گندم کی کٹائی کے لیے میری بیٹی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیتوں میں جاتی تھی۔ وہ کھیت ہمارے گاؤں کے ذمہ داروں کے تھے۔ وہ چودھری گندم کی کٹائی کے بدلے سال بھر کی گندم ہمیں مفت دیتے تھے، جس سے ہم ماں بیٹی کو روٹی مل جاتی تھی، جیسے ہم چٹنی پیاز سے کھا کر گزارا کر لیتی تھی۔ کچھ مجھے سلائی آتی تھی تو کپڑے سی کر اپنی دیگر ضروریات کو پورا کر لیتی تھی۔ زلیخا روز صبح کھیتوں میں چلی جاتی تھی، پھر دوپہر کے بعد ہی گھر لوٹتی تھی، لیکن آج جب سے آئی تھی پریشان تھی، مجھے کچھ بتا بھی نہیں رہی تھی۔ کہنے لگی، کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے اماں، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ لیکن میں ماں ہوں۔ بیٹی کا چہرہ دیکھ کر اس کی پریشانی بھانپ گئی تھی، مگر اس کی پریشانی کی وجہ نہیں جانتی تھی، مگر یہ وجہ بھی بہت دیر تک چھپ نہیں پائی تھی۔ اصل پریشانی مجھے اس وقت ہوئی جب زلیخا نے اگلے روز کھیتوں میں جانے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگی، اماں آج کے بعد میں کھیتوں میں نہیں جاؤں گی۔ میں نے کہا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اگر تم کام پر نہ گئی تو گھر کیسے چلے گا؟ میری بات پر وہ خاموش سی ہو گئی، لیکن اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ میں زلیخا کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، مجھے سچ سچ بتا، کیا بات ہے؟ میری بات پر وہ نظریں چرانے لگی، پھر بولی کہ جب وہ کھیتوں میں گندم توڑ رہی تھی تو وہاں گاؤں کے چودھری کا بیٹا آ گیا۔ میری بیٹی دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تم دوسری جانب چل کر وہاں سے گندم توڑو، میرے ساتھ آؤ، میں بتاتا ہوں کہ تم نے گندم کہاں سے توڑنی ہے۔ وہ میری بیٹی کو باقی لڑکیوں سے دور لے گیا، کھیتوں کے سنسان سے حصے میں لے جا کر اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا۔ میری بیٹی غصے میں آ گئی، اس نے اس شخص کے منہ پر تھپڑ مارا اور اسے دھکا دے کر گھر چلی آئی تھی، اور اب پریشان تھی۔ یہ سب سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ ظاہر ہے جو کچھ زلیخا کے ساتھ ہوا اور جو رد عمل آگے سے زلیخا نے اس شخص کے ساتھ کیا، چودھری ہمیں گندم دینا تو دور کی بات، شاید گاؤں سے ہی نکال دیتا۔ میں شش و پنج میں مبتلا تھی، رات بھر مجھے نیند نہ آئی تھی۔ یہی سوچتی رہی کہ اگر چودھری نے مجھے گاؤں سے نکال دیا تو جوان بچی کے ساتھ کہاں جاؤں گی، کیا کروں گی؟ زلیخا کو تو میں نے تسلی دی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ تھپڑ کا بدلہ وہ لوگ ضرور لیں گے۔ گاؤں کے ذمہ داریوں کی ضد اور انا کے عطا کا نشانہ ہم عورتیں ہی بنتی ہیں۔ بظاہر یہ لوگ گاؤں والوں کی مائی باپ ہوتے ہیں، لیکن ان کی غلیظ نظریں جب کسی لڑکی پر ٹک جائیں تو وہ گاؤں سے ایسی غائب ہوتی ہے کہ دوبارہ کہیں نہیں ملتی۔ اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا، کسی کو کچھ علم نہیں ہوتا۔ میرا دل بری طرح سے ہول ہو رہا تھا۔ میں تو تھی بھی اکیلی اور بے سہارا سی عورت۔ اگر اس چودھری نے نکال باہر کیا تو پھر میں کیا کروں گی؟ فجر کی اذانیں شروع ہوئیں تو میں جائے نماز بچھائے رونے لگی۔ پورا دن دروازے کی ہر دستک پر میرا دل دہل جاتا، اور وہ بھی خوف زدہ تھی۔ میں دل ہی دل میں یہ دعا کر رہی تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے، وہ چودھری میری بچی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن جو کچھ رات کو ہوا، کاش کہ اس سے پہلے زمین پھٹ جاتی اور میری بچی زمین میں دفن ہو جاتی۔ ہماری چیخیں اور سسکیاں پورے گاؤں میں گونجی تھی۔ میں نے ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹا کر منت سماجت کی کہ میری کوئی مدد کر دے، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ رات کو وہ چودھری اور اس کے بیٹے کے ساتھ دو تین ہٹے کٹے نوجوان بھی آئے تھے۔ وہ ہمارے گھر کا دروازہ دھکے سے کھول کر اندر گھس آیا۔ دروازے کی آہٹ سن کر میرا دل ہی سینے میں تھم گیا تھا۔ زلیخا بھی گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ کمرے سے باہر نہ نکلے۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ باہر نکلی۔ سامنے چودھری اور اس کے بیٹے کے ساتھ دو اور لوگوں کو دیکھ کر میری جان لبوں پر آ گئی تھی۔ وہ ذمہ دار غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ کہنے لگا، بھلا اپنی بیٹی کو باہر اس کی اتنی ہمت
मेरे बेटे के मुंह पर थप्पड़ मारे। इसका तो आज वो हशर करूंगा कि अपने मुंह से मौत मांगेगी। ये सुनकर तो मैं रोने लगी। मैंने अपने कपकपाते हाथ उसके सामने जोड़ दिए, उनके पैरों में बैठ गई। मैंने कहा, खुदा के लिए मेरी बेटी को माफ़ कर दो, उससे गलती हो गई। मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन उस चौधरी ने मुझे अपने पाँव से बड़े ज़ोर की ठोकर मारी और अपने गार्ड को कहने लगा, जा बाहर लेकर आ इस लड़की को। इसे ये भी तो मालूम हो कि चौधरियों के मुंह पर थप्पड़ मारने का अंजाम क्या होता है। मैंने तड़प कर दोबारा चौधरी के पैर पकड़ लिए। मैंने कहा, खुदारा मेरी बेटी को माफ़ कर दो, रहम खाओ हम मजबूरों पर। लेकिन वो लोग सफ़ा किस्म के लोग थे, वो नहीं माने। वो गार्ड कमरे में गए तो जुलेखा चलाने लगी। मैं बेसाख्ता चौधरी के पैरों से उठ खड़ी हुई और कमरे की तरफ लपकी। लेकिन उस कमीने चौधरी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो गार्ड मेरी बेटी को बालों से पकड़कर बाहर लाया था। चौधरी के बेटे के पैरों में इसे जोर से धकेला। जुलेखा उसके कदमों में जा गिरी। वो नौजवान बड़े मुतकब्बिराना मुस्कुराहट लिए जुलेखा को अपने सामने झुका देने लगा। अक्लमंदी का तकाजा था कि मेरी बेटी इससे माफ़ी मांग लेती। मैंने कहा, जुलेखा तू माफ़ी मांग ले। जुलेखा रो रही थी, जानती थी कि हम मजलूम और बेबस हैं, इसीलिए हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो शख्स बेहसी से हंसने लगा, कहने लगा, माफ़ी का सफ़र मेरी किताब में है ही नहीं, मैं तो बदला लेता हूँ, वो भी सूद समेत। जुलेखा की रंगत बदली थी। वो कहने लगी, तुम मेरे मुंह पर 2 थप्पड़ मार लो, लेकिन हमें छोड़ दो। वो कमीनगी से हंसने लगा, कहने लगा, मैं तो तुझे जिल्लत का वो थप्पड़ मारूंगा कि उम्र भर इस थप्पड़ की गूंज सुनती रहेगी। उसने जुलेखा को झुककर उसकी चुटिया से पकड़ा तो मेरा दिल तड़प गया। मुझे लगा वो मेरी बच्ची को मारेगा। लेकिन जब उस घटिया शख्स ने मेरे सामने मेरी बच्ची का दुपट्टा बेदर्दी से उतार कर फेंका तो मेरी रूह लर्ज गई थी। मेरी सामने वो मेरी बच्ची को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ सामने कमरे में ले गया। मैं चलाने लगी कि ऐसा कुछ मत करो, मेरी बच्ची पर यह जुल्म ना करो। लेकिन उसने पूरी कुव्वत से दरवाज़ा बंद किया था। मुझे लगा मेरा दिल बंद हो चुका है। अंदर से जुलेखा के चलाने की आवाज़ें आ रही थी। वो तड़प रही थी, वो रो रही थी, कह रही थी, अम्मा मुझे इस शख्स से बचा ले। मैंने कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से धड़धड़ाया। मेरी बच्ची अंदर उस सफ़ा शख्स को खुद से दूर रहने का कह रही थी, रो रही थी। मैं तेज़ी से चौधरी के पास आकर रोने लगी। मैं गिड़गिड़ाने लगी कि मेरी बच्ची को बर्बाद ना करो। लेकिन वो बेहसी की तस्वीर बना खड़ा था। मैं तेज़ी से घर से बाहर निकल गई। उस पास के घरों के दरवाजे पीटने लगी कि खुदारा कोई मेरी बेटी की इज्जत को बचा लो। मेरे चलाने की आवाज़ कई गलियों तक गूंज रही थी। मैं गला फाड़े चलाकर मदद मांग रही थी, लेकिन लग रहा था जैसे सारा गांव खाली हो, कोई भी आसपास ना रहता हो। मैं दोबारा अंदर आ गई। बार बार कमरे का दरवाज़ा बजाती रही, मिन्नत समाजत करती रही। मैं थक चुकी थी, सबको पकार पकार कर मदद मांग कर। 2 घंटे बाद वो कमीना कमरे से अपनी खबासत भरी हंसी हंसते हुए बाहर निकला था। मेरा जी चाहा सामने रखी हुई मिट्टी की हंडिया उठाकर उसके सर पे दे मारूं, किसी तेज धार वाले चाकू से उस शख्स के टुकड़े टुकड़े कर दूं, इसका कत्ल कर डालूं। लेकिन मैं बेबस थी। मेरी बच्ची अब चला नहीं रही थी, बस उसकी सिसकियां मुझे सुनाई दे रही थी। मेरा दिल कोई कन छुरी से काट रहा था। वो लोग वापस जा चुके थे। मेरा दिल तड़पा कि अंदर चली जाऊं, अपनी बच्ची को अपने सीने से लगाकर तसल्ली दे दूं। लेकिन मेरे कदमों ने मेरा साथ नहीं दिया। मुझे लगा मैं बिल्कुल बेजान हो गई हूँ, मैं मर गई हूँ। मेरी बच्ची को उस शख्स ने बर्बाद कर दिया था। मुझ में शायद अब इतनी ताब न थी कि मैं अपनी बच्ची को लटी फटी हालत में देखूं। लेकिन मेरी ममता मेरे अंदर तड़प रही थी। मैं मरे मरे कदम उठाती आगे बढ़ी। कमरे में पहुंची तो जुलेखा मुझे कमरे में नजर न आई। पूरा कमरा बिखरा पड़ा था। मेरी बच्ची चारपाई के पीछे छुपी बैठी थी, सिसक रही थी। मैं जब उसके पास पहुंची तो इसे देखकर मैंने आंखें बंद कर ली। उस शख्स ने मेरी बच्ची को बेदर्दी से मारा था। उसके चेहरे पर जख्मों के निशानात थे। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। उसके बाजू पर नाखूनों की खरोंचें थी जिनसे खून रस रहा था। मैंने चारपाई से चादर उठाकर अपनी बच्ची पर डाल दी। उसके पास आकर बैठी तो वो डर कर मुझसे पीछे हट गई, जैसे मेरी जगह वो शख्स हो। मुझे देखे बिना कहने लगी, मुझे हाथ मत लगाओ, मेरे पास मत आओ, मुझे बर्बाद मत करो, खुदा के लिए मुझ पर रहम खाओ, मेरे करीब मत आओ, मेरा किरदार दगादार मत करो।
मेरा कोई कसूर नहीं। वो तड़प तड़प कर रोने लगी तो मेरा कलेजा फटने लगा। अपनी बच्ची की हालत देखकर मैं रोने लगी। इसे अपने साथ लगा लिया। वो फूट फूट कर रो रही थी। जुलेखा वक्ती तौर पर अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी थी। 2 दिन वो कमरे से बाहर नहीं निकली। रात को सोते हुए डर कर उठ जाती तो रोने लगती। मैंने बड़ी मुश्किल से जुलेखा को संभाला था, लेकिन मेरी बच्ची की सज़ा तो ख़त्म नहीं हुई थी। अभी वो कुछ संभली ही थी कि एक आफत हम पे आ पड़ी कि एक दिन वो चौधरी, एक मौलवी और अपने इसी बेटे को लेकर मेरे घर आ गया। कहने लगा, मेरे बेटे का तेरी बेटी से जी लग गया है, बड़ी खूबसूरत है। जिस दिन से यहाँ से गया है जुलेखा जुलेखा करता रहता है, इसीलिए मैंने सोचा तेरी बदबख्त बेटी का नसीब चमका दूँ। इसका निकाह अपने बेटे से करने आया हूँ। अब देखना, जवान बेटा है, मेरा गर्म खून है। उस दिन ज़रा गुस्से में था, आज कहने लगा मुझे वो लड़की रोज़ चाहिए। मेरा इससे अभी जी नहीं भरा। ये सुनकर मेरे अंदर वो आग धकी कि मेरा जी चाहा इस चौधरी का भी गला दबा दूं, जो इस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू मेरे साथ कर रहा है। लेकिन हम लोग गाँव के ऐसे ही कमीने जिम्मेदारों के सामने चाहकर भी कुछ बोल नहीं सकते। फिर वो मुझसे ज़रा करीब होकर बेशर्मी से बोला, अब अच्छा तो नहीं लगता कि रोज़ रोज़ मेरा गबरू जवान तेरे घर आकर तेरी बेटी के पास जाए, क्योंकि जो चीज़ मेरे बेटे को पसंद आ जाए इसे इस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक इसकी होश की भूख न मिट जाए। बस एक बार वो सैराब हो गया तो फिर थूकेगा भी नहीं तेरी बेटी पर। इसीलिए मैंने सोचा कि निकाह करवा के घर ले आ जाते हैं, पड़ी रहेगी घर के किसी कोने में मेरे बेटे का जब जी बहलाने के लिए। लेकिन हाँ, मेरा वादा है, जिस दिन मेरे बेटे का दिल तेरी बेटी से भर गया, इसे तेरी दहलीज पर फेंक दूंगा तलाकनामे के साथ। वैसे भी जो कुछ उस दिन तमाशा लगा है, गांव का कोई जवान तेरी बेटी से शादी तो दूर की बात इस पर थूकेगा भी नहीं। मैं जानती थी कि मेरी बच्ची को अब कोई भी बयाने नहीं आएगा, लेकिन मैं इसे इस शख्स के हाथों दरिंदगी और सफाकी का सामान बनते नहीं देख सकती थी। मैंने इस चौधरी से कहा कि मेरी बच्ची के कसूर की सज़ा आप लोगों ने बड़ी बेरहमी से ली है। खुदा का वास्ता है, अब हम गरीब माँ बेटी को माफ़ कर दो, आप लोग यहाँ से चले जाओ। मैंने रकत अमेज़ लहजे में कहा। चौधरी बुलंद आवाज़ में बोला, बात सुन लड़की, अगर तूने मेरे बेटे से निकाह ना किया तो इसकी सज़ा तेरी माँ भुगतेगी। मेरा बेटा तेरी माँ से निकाह करके इसे अपने अताब का निशाना बनाएगा। फैसला तेरे हाथ में है। यानी कि घटियापन की इंतहा थी। इन लोगों ने शर्मो गैरत बेच खाई थी। जुलेखा ये सुनते ही बाहर आ गई। कहने लगी, मेरी माँ को इस उम्र में जलील मत करो, मुझे निकाह पर कोई एतराज़ नहीं है। मैं ये सुनकर तड़प सी गई। मेरी मासूम सी बच्ची मौत से पहले मरने जा रही थी। मेरी इज्जत की खातर मैंने इस चौधरी की बहुत मिन्नत समाजत की कि हमारी जान छोड़ दे, लेकिन ऐसे लोगों के दिल मुर्दा हो चुके होते हैं, इन्हें किसी के आंसू नज़र नहीं आते। मेरा घर वीरान सा हो चुका था, मौत जैसे खामोश थी। मेरे आंगन में मेरी बेटी रुखसत होकर जा चुकी थी और मैं बेजान बुत बनी बैठी थी। मेरी इज्जत और सफ़ेद बालों का पास मेरी बेटी ने इन जालमों की भीनट चढ़ा कर रख दिया था। मुझे तो वो याद आ रहा था कि जब वो छोटी सी थी, मेरे सहन में खेल रही थी। उसके बचपन की यादें मुझे सताने लगी। कैसे मेरी बच्ची परिंदों के पीछे भागती थी, हर वक्त हंसती खिलखिलाती रहती थी, मेरी आंखों पर मोहब्बत से हाथ रख देती थी। मेरी कुल कायनात थी मेरी जुलेखा, जो अब इन चौधरियों के जुल्म का निशाना बन गई थी। 1 महीना गुजर गया। मेरा दिल बड़ी बेताब से मचल रहा था। कैसे मैं अपनी बेटी को देखूं, कैसे उसकी खबर लूं। मेरे आंसू नहीं थमते थे। हर रात मेरी कुर्म में गुजरती थी। मुझे लगता था वो कमीना चौधरी का बेटा मेरी बच्ची के साथ न जाने क्या सफाकी कर रहा होगा। फिर मैंने एक तरकीब लड़ाई। मैं एक मुलाजमा बनकर घूंघट निकाले उनके घर काम मांगने चली गई। जिम्मेदारों की हवेली की हर मुलाजमा घूंघट निकाले रखती थी। मुझे उनके घर में काम मिल गया। मैं इस हवेली में हर कमरे में सफाई करने के बहाने अपनी जुलेखा को ढूंढने की कोशिश करती, लेकिन न जाने उन जालमों ने इसे कहाँ छुपा रखा था। वो हवेली में कहीं नहीं थी। मेरा दिल अंदर ही अंदर घुट रहा था कि कहीं मेरी बच्ची को जान से तो नहीं मार डाला। जालमों ने ये सोच ही मेरे लिए सहाने रूह थी। रात को मैं क्वार्टर में सो रही थी। मेरे बराबर एक और मुलाजमा सोई हुई थी जो किचन के काम पर मामूर थी। वो क्वार्टर हवेली की पिछली जानब बने हुए थे। मुझे चीखने चलाने की आवाज़ आई तो मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। छोड़ दो, मुझे वापस जाने दो, मेरी जुलेखा की आवाज़ थी। मेरा तो कलेजा मुंह को आने लगा। मैंने झट से खुद से लहाफ उतारा
तो मेरे बराबर लेटी औरत उठकर बैठ गई। मेरी तो ममता अपनी बच्ची की आवाज़ सुनकर तड़प गई थी, लेकिन उस औरत के सामने मुझे अपनी बेकरारी छुपानी पड़ी। वो मुझसे कहने लगी, सो जा, ये तो रोज़ का तमाशा है। इन जालिमों के हाथों रोज़ लड़कियां रात को यूं ही चलाकर उनकी सफाकी के सामने हाथ जोड़ती हैं, मिन्नत समाजत करती हैं, मगर कहाँ रहम आता है इन्हें। हम तो रोज़ सुनते हैं, तू नहीं आई है इसलिए तेरी नींद से आँख खुल गई है, लेकिन हम तो आदी से हो गए हैं। ये कहकर वो करवट बदलकर सो गई। लेकिन मुझे कहाँ नींद आती। मेरी बच्ची रो रही थी, कह रही थी, तू मुझे जान से मार दे, मुझ पे ये एहसान कर दे, मुझे मार डाल। मेरा दिल था कि फटा जा रहा था। वो औरत अब गहरी नींद में जा चुकी थी। मैं उठकर क्वार्टर से बाहर आ गई। मुझे हवेली की पिछली जानब से आवाज़ें आ रही थी। हवेली की पिछली जानब मैं गई तो वहाँ एक कमरा बना था, लेकिन वो अंदर से लॉक था। मेरी बेटी की आवाज़ें आ रही थी। वो शख्स उसकी बेबसी पर हंस रहा था। कहने लगा, तुझे मैं पल पल की मौत दूंगा। ऐसी आसान मौत उस लड़की की हो ही नहीं सकती जिसने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की हो। आज मैं तेरा ये हाथ ही जला दूंगा। ये सुनकर बाहर खड़ी मेरा दिल मुट्ठी में दबोचा गया था। फिर मेरी बच्ची के बुलबुलाने की आवाज़ें आने लगी। वो फिर से चलाने लगी। शायद इस शख्स ने मेरी बच्ची का हाथ जला दिया था। ये कैसी बेबसी थी, ये कैसी अजियत थी। मैं वापस अपने क्वार्टर में आ गई। जुलेखा अब भी रो रही थी, तड़प रही थी। दूर तहज्जुद की अजानें होने लगी। मैंने बहते आंसुओं से वज़ू किया। नमाज के नवाफल पढ़ते हुए मेरे आंसू बददरीज बह रहे थे। मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए तो बस यही कहा, ऐ अल्लाह मेरी बच्ची को अपने पास बुला ले। मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं होगी जितनी अपनी बच्ची को पल पल अजियत में देकर होती है। शायद मैं पहली माँ थी जो अपनी बच्ची के लिए ये दुआ कर रही थी। उसकी चीखों पकार मुझसे सुनी नहीं जाती थी। अगले रोज़ जब मुलाजमा खाना लेकर पीछे तय खाने की जानब जाने लगी तो मैंने इससे कहा कि तुम ये खाना मुझे दे दो, मैं दे आती हूँ। वो कहने लगी, नहीं, मेरी जिम्मेदारी लगी है, तुम रहने दो। मैं बसी से इसे देखने लगी। मुझ पुरनम देखकर कहने लगी, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? मैंने इसे मुख्तसर सी सारी बात बता दी। वो कहने लगी, ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलवा देती हूँ। मैं उसके साथ चली गई। जब मैं उस तय खाने में दाखिल हुई तो मेरी रूह फना हो गई। मेरी बच्ची जंजीरों में बंधी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, चेहरा आधा झुलसा हुआ था, पाँव पर जख्म, हाथ पर ताज़ा जले हुए का जख्म। ये सब देखकर मैं तड़प सी गई। मैं उसके गले लगकर रोने लगी, लेकिन वो मुझे अजनबियों की तरह से देख रही थी। मुझे खुद से पीछे धकेल कर खौफ से पीछे हट गई। कहने लगी, कौन हो तुम? देखो मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर रहो। मेरी बच्ची नीम पागल हो चुकी थी। उसकी हालत देखकर मेरा दिल फटने लगा था। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन वो कहने लगी, मेरा कोई नहीं है, जाओ यहाँ से। मैं रोते हुए वहाँ से बाहर निकली थी। 2 दिन मुझे यूं ही जुलेखा के चीखने चलाने की आवाज़ें आती रही, लेकिन तीसरे दिन के बाद एक चुप सी छा गई। अगले रोज़ जो खबर मुझे सुनने को मिली, इसे सुनकर मैं बेजान सी हो गई थी। मेरे रब ने मेरी दुआ सुन ली थी। मेरी बच्ची की अजियत ख़त्म हो गई थी। वो मर गई थी। चाह कर भी मेरी पत्थर आंखों से आंसू नहीं निकले थे। वो मुलाजमा जो मेरे साथ से वाकिफ़ थी मुझे कमरे में ले गई। कहने लगी, तुम्हारी बेटी मर गई है, लेकिन यहाँ किसी को नहीं पता कि तुम इसकी माँ हो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। कहीं तुम उनके सामने अपना ज़बत ना खो दो। मैंने कहा, नहीं, मैं तो आज शुक्राने की नफल पढ़ूंगी। मेरी बेटी की अजियत ख़त्म हो गई। उसने समझा था मैं बहुत बहादुर हूँ। वो औरत मुझे हैरियत से देख रही थी। मैंने वज़ू किया, नमाज पढ़ी, लेकिन जब दुआ के लिए हाथ उठाया तो जुलेखा का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। उसका मुस्कुराता चेहरा बड़े लाड से कहने लगी, अम्मा अपने सीने से लगाओ ना। अम्मा, मेरा दिल यकबारगी से तड़प रहा था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। शिद्दत से दिल चाहा कि अपने जिगर के गोशे को सीने से लगा लूं। रात के वक़्त मैं इस मैदान में चली गई जहां इन चौधरियों ने इन मासूमों की कब्रें बना रखी थी जो उनके जुल्म को सह सह कर मर जाती थी। एक कब्र की ताज़ा गीली मिट्टी देखकर मैं वहीं ढहाल गई, रोने लगी। जुलेखा जुलेखा ये कहकर उस मिट्टी के ढेर के गले लग गई जहां मेरी जान मर चुकी थी। मैं रो धोकर वापस आ गई। मेरी बेटी तो जा चुकी थी जो मेरी ज़िंदगी की उम्मीद और आस थी, इसीलिए अब मुझे किसी की परवाह नहीं थी।
میں نے رات کو اس دودھ میں زہر ڈال دیا جو چودھری اور اس کا بیٹا پیتا تھا۔ صبح ایک کوہرام مچ چکا تھا، رونا دھونا شروع ہو گیا۔ دونوں مر چکے تھے۔ پولیس کا سارا شک اس ملازمہ پر تھا جو کھانا بنانے پر مامور تھی، لیکن میں نے اعتراف جرم کر لیا اور وجہ بھی بتا دی۔ میں جانتی تھی کہ میں مجرم تھی، لیکن میرا دل پرسکون تھا۔ جیل میں بیٹھ کر جب میں نے آنکھیں بند کی تو زلیخا کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آنے لگا۔ کہنے لگی، اماں تو نے مجھے انصاف دلا دیا۔ میں بھی مسکرانے لگی۔ میں اپنی زلیخا کو بچا تو نہیں پائی، لیکن اپنے گاؤں کی بہت سی لڑکیوں کو زلیخا ہونے سے بچا لیا۔ شکریہ۔